Yes, yes, tell me. सर बुक में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को पहले दिया है, उसके बाद सक्सिनिक एसिड है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, पहले अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन रहा है। सक्सेनिक एसिड बना। यस आस्था, हाँ यहाँ पे कहाँ सक्सेनिक एसिड बना? ऊपर ही बन गया है, देखिए ऑक्सैलो सक्सिनिक अरे ये एसिड। ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड है। अच्छा सॉरी सर, डिफरेंट है। Again see, isocytric acid will be oxidized and it will form oxalosuccinic acid. Oxidized means समझ में आ रहा है, it will undergo the process of oxidation reaction. This oxalosuccinic acid will undergo the process of decarboxylation and it will form what? Alpha ketoglutaric acid. In this process, one molecule of NADH plus is removed. बुक में तुम्हारे ये स्टेप, दिस स्टेप इज मिसिंग इन योर बुक, तो इस स्टेप को नहीं दिखाया, इसलिए इसने इसको और इसको कंबाइन करके बीच में एक एरो लगा के क्या दिखा दिया? NADH को रिलीज करते हुए। ठीक है, आई एम ओनली इंक्रीज्ड वन स्टेप टू शो दिस कि इनके और इनके बीच में ये मॉलिक्यूल कहां पर रिलीज होता है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बुक में डॉट्स बने हुए हैं, कंप्लीट एरो नहीं है। दैट डॉट्स आर इंडिकेटिंग दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शंस। यहां तक क्लियर है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तक? नाउ सी, यस आस्था। सर ये जितना सिट्रिक एसिड से लेके अल्फा कीटोग्लूटारिक आइसोमरेज फॉर्म है सिट्रिक एसिड का। आइसोमरेज रिएक्शन, साइट्रिक एसिड जो बना, साइट्रिक एसिड आइसोमराइज हो गया, आइसोसाइट्रिक एसिड बना। तुम्हारे बुक में साइट्रिक एसिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। हमने बीच के दो रिएक्शन को इसलिए जाना क्योंकि इन्हीं रिएक्शंस में ये एक मेजर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पूरे साइकिल में हमें फोकस किसको करना है? वी हैव टू फोकस ऑन द रिलीज ऑफ दिस प्रोटॉन आयंस, प्रोटॉन्स पे फोकस करना है, and this proton is released in this step. That's why I have divided that step into further steps. Clear? Yes sir. Okay, once again we will undergo this complete process. अभी हम एक एक स्टेप पे बात करें। This alpha ketoglutaric acid undergoes oxidative decarboxylation using coenzyme A to form succinyl coenzyme A. Now see your book. Alpha ketoglutaric acid undergoes oxidative decarboxylation to form what? Succinyl coenzyme A. अभी फिर से इसके बीच में ये फिर से किस प्रोसेस में जा रहा है? This alpha ketoglutaric process producing what? Decarboxylation. Succinyl coenzyme A. Clear? And the process will be Decarboxylation. एक बार और थोड़ा सा पीछे करता हूं, फिर से देखो। The isocitric acid is then oxidized in the presence of NAD+ to form oxalosuccinic acid, which is later decarboxylated to form alpha ketoglutaric acid. This alpha ketoglutaric acid undergoes oxidative decarboxylation using coenzyme A to form succinyl coenzyme A. Along with the reduction of NAD+ to NADH plus H plus ion. Wait. The एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ पर भी रिलीज हो गया, NADH plus H plus. Clear? आस्था, खुशी, ठीक है? Yes sir. Okay. If anybody is having any doubt, raise your hand immediately so that we can clear the concept. succinyl coenzyme A formed is hydrolyzed to succinic acid with the release of coenzyme A. ठीक है? This succinyl coenzyme A, it undergoes the process of hydrolyze. Hydrolyze means Water का breakdown of water. Hydrolysis, the process of hydrolysis will occur in the presence of enzyme hydrolase and it will result in the synthesis of what? Succinic acid. ठीक है? In the initial phase also I have told you that whenever you will go through this topic, means citric acid cycle or glycolysis or electron transport through any side book or any other method which we have not, which is not in the NCERT, you will find various steps.
बीच में कुछ स्टेप्स हमें मिलेंगे, ये मैंने शुरू में भी बताया था। अभी यहाँ पर ये इसलिए बताना जरूरी हो गया मुझे क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर ये रिलीज होते हैं। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारे बुक में साइट्रिक एसिड को कन्वर्ट किया किसमें? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। इनके बीच के कुछ स्टेप्स मिसिंग थे व्हिच I have written on blackboard also and it is available on your phone screen also. अब तक किसी को कोई डाउट? बोलो, anybody is having any doubt? Just raise your hand. Yes, आस्था? सर सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होने से पहले यहाँ जीडीपी मतलब रिलीज हो रहा है, तो ये जीडीपी क्या है? जीडीपी से जीटीपी रिलीज हो रहा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। DP means it will indicate diphosphate. Like we have studied one energy molecule adenosine diphosphate या and adenosine triphosphate पढ़ा हमने। In the same way, in place of adenosine, here another molecule will be added, that is guanosine. It will work just like ATP. जैसे ATP एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, वैसे ही GTP भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो यहाँ तो उतना ही एनर्जी कंसिस्ट करता है वो, जितना एटीपी करता है। एनर्जी एटीपी और जीटीपी में, एडिनोसिन और गुएनोसिन, एनर्जी ना एडिनोसिन में है ना गुएनोसिन में। एनर्जी है कहाँ? एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो 3 फॉस्फेट वहां भी है, 3 फॉस्फेट यहाँ भी है। क्लियर? अभी इस पे बात होगी, जीटीपी पे बात होगी। ओके, लेट्स प्रोसीड। This reaction also results in the production of guanosine triphosphate or GTP, a high-energy molecule from GDP, by substrate-level phosphorylation. ठीक है, एक यहाँ वर्ड आया, one new word is phosphorylation. Word already we have studied. Phosphorylation means addition of phosphate, that is it production of energy. Ultimately we can say substrate-level phosphorylation means when any reactant is converted into product, or we have studied that enzyme plus ES complex, we have studied enzyme substrate complex. So this GTP is produced from that substrate only. Means what? This GTP is produced by the help of this succinyl coenzyme. This succinyl coenzyme A will work as a substrate, and this substrate will help in the production of what? GTP. That's why it is called as substrate level phosphorylation. Yes, Kushi? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं आया समझ में। फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा है। हाँ, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स याद है, वी हैव स्टडीड इन बायोमोलिक्यूल, है ना? यस सर। उसी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट मॉलिक्यूल या एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो जाती है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मतलब सबस्ट्रेट से ही प्रोडक्ट भी बना और सबस्ट्रेट से ही फॉस्फेट की सिंथेसिस यानी एनर्जी की सिंथेसिस भी हो गई। क्लियर? तो सबस्ट्रेट के अलावा भी किसी चीज से फॉस्फेट की मतलब फॉर्मेशन होती है? इससे पहले हमने जब वो पढ़ा केमी ऑस्मोटिक, तो वहां पर एटीपी की सिंथेसिस हो रही थी। दैट वाज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन। वहां सबस्ट्रेट से नहीं फॉस्फोरिलेशन हो रहा था, वहां पर प्रोटॉन आयंस की वजह से हो रहा था। समझ रहा है? एंड यहाँ पर ये सबस्ट्रेट जो सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये है, ये कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में। तो ये एंजाइम हो गई, कोई एंजाइम होगी जो इसको कन्वर्ट करेगी, तो ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया। दिस सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट, और जब ये सबस्ट्रेट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन बिटवीन इट इज रिलीजिंग व्हाट? वन मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी, दैट इज जीटीपी। क्लियर? यस। ओके, सी फर्दर। The GTP thus formed is again converted back into GDP, coupled with the synthesis of ATP from ADP. ठीक है, अल्टीमेटली क्या यहाँ आया कि जीटीपी बना। ये जीटीपी अल्टीमेटली इट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? एटीपी। व्हाई एटीपी? बिकॉज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लो जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग यू ना, देखो अभी एक मैसेज आया, क्या सिस्टम है। डियर देशराज, मेरा नाम भी बदल गया है। You have successfully been vaccinated with your first dose with Covishield on 19th. Today is what? 19. At 12:04 PM. 12:04 पे मैं स्कूल में हूँ और मुझे कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लग गया। यही गवर्नमेंट की व्यवस्था।
अभी 1 घंटे बाद, इससे पहले मैसेज आ गया, डोज लगने से पहले मैसेज आ गया कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, अब आ रहा है कि डोज लग गया। सी The succinic acid formed in the previous reaction is oxidized to fumaric acid with the reduction of FAD plus to FADH2. Again one more step is added, ये important step है, this succinic acid is converted into fumaric acid, और जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तभी यहाँ पर क्या एक मॉलिक्यूल का बन जाएगा FADH2। ये FADH2 क्या है ये आगे अभी जानेंगे, बट अगर तुम अपने बुक को देखोगे, क्यों मैंने आज ये इसका यूज किया, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मेरे हिसाब से इट शुड बी प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट। लाइक इन बुक यू कैन सी दैट सक्सिनिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड को बुक में कन्वर्ट किया मैलिक एसिड में, और उसके बीच में किसको रिलीज किया, FADH2 को। तो सक्सिनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, लेकिन उसके बीच में एक और स्टेप होगा किसका, फ्यूमेरिक एसिड का, और फ्यूमेरिक एसिड इसको रिलीज कराता है। समझ आई बात? ओके सी सर सिट्रेट, सिट्रिक एसिड और सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड, इसमें क्या अंतर है? ये और ये तो सिंपल ये आइसोमराइज हो गए, और उसके बाद किसमें क्या हो रहा है ये हमने लिख लिया। सर जैसे जहाँ आपने सिट्रिक एसिड या सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दिखाया है, वहाँ पे सक्सिनेट, फ्यूमारेट और सिट्रेट कोई लिखा है अंतर नहीं, कहीं उसमें कहीं। कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई देयर इज नो डिफरेंस, उसमें अंतर नहीं है। The fumaric acid is hydrolyzed to malic acid, which is ठीक है, दिस फ्यूमेरिक एसिड विल बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मैलिक एसिड, then oxidized to oxaloacetic acid with the reduction of NAD plus to NADH plus H plus ion. ठीक है, दिस मैलिक एसिड विल अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। मैलिक एसिड को फिर से कन्वर्ट हो जाना है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में, क्यों, क्योंकि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जब बनेगा तभी ये एसिटिल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करके इस साइकिल को बार-बार रिपीट करेगा। क्लियर? फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में हाइड्रोलिसिस होगा फिर से? फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। वेट 1 सेकंड, हाइड्रोलिसिस नहीं, फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड के बीच में हाइड्रोलिसिस होगा, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। हाइड्रेशन लिखा है, क्या लिखा है? नहीं कुछ नहीं, हो गया। ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब मेरे पास जो बुक है, जो अभी मेरे पास बुक है, उसमें ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के पहले जो एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो लिखा हुआ है ADH plus H+। आप लोग के पास जो बुक है उसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, NADH plus H NADH plus लिखा है। वही बताने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बुक है ना वहां पर NADH ना लिख के यहाँ पर किसको बना दिया है, मेरे पास जो बुक है उसमें ऐसा लिखा है ADH plus H+, ऐसा नहीं होगा, इट विल बी NADH plus H+। If there is printing mistake in your book, you can correct it. Clear इतना? अब see, less time is remaining. Let's see what more is the difference. तो यहाँ ऑक्सीडेशन, मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड cycle to run continuously. Oxaloacetic acid, NAD plus and FAD plus need to be regenerated. This same diagram is present, nearly same diagram is present in Which your is book. then oxidized to oxaloacetic acid with the reduction of NAD plus to NADH plus H plus ion. सर Krebs cycle to run continuously. Oxaloacetic acid, NAD plus and FAD plus need to be regenerated. The summary equation of Krebs cycle is as shown here. I think this reaction is available in your book also. यस सर, Only the difference is that there is no difference. The same equation is present in your book also. Also, you can see pyruvic acid plus 4 molecule of NAD plus. अब ये 4 molecules कहाँ enter हो रहे हैं? When the class will be over, give your time 30 minutes, और उसके बाद ये जानने की कोशिश करना है कि कहाँ 4 molecule NAD के convert लग रहे हैं। जहां पर NAD के molecule लगेंगे
वहां पर किसका मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, NADH का NADH मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जहां FAD लगेंगे वहां FADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्लियर? The net gain of Krebs cycle in the conversion of This I think this reaction, this chart is not available in your book. Write in your book, write in your notebook or an NCERT book immediately. Write it. Write it fast. I have to take one strength also. तो लिखिए। Right? Everybody has written? स्क्रीनशॉट ले लिए। Better you take a screenshot. Now I am stopping the screen sharing option. Once again we will go further. तो व्हाइट बोर्ड पे आपने जो लिखा है उसे लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है? रुको एक सेकेंड। Three, four of you have not switched on your video just till the class has been completed. The class is just going to be completed. So today I have not removed you because I was busy with the screen share option, but it will not continue again and again. Many times I have asked you that your video must be switched on daily. What is going on in your online classes? I think you all are knowing. किस क्लास में क्या हो रहा है? So without video, I will not allow you. Yes, if you want to write from the board, you can write it. Achal, mute your mic. Three minutes are still remaining. Before to discuss anything about this topic, please go through the book and whatever the concept I have taught you today, afterwards have a discussion with me if some doubt is there. Okay, एक बार बुक को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कंसेप्ट है, बुक से पढ़ के बहुत सारी कंफ्यूजन अगर होंगी तो उसमें से मैक्सिमम कंफ्यूजन जब मेरे पढ़ाने के बाद बुक के थ्रू जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव. If still some problem will be there,